يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. तो जहरा नकवी ने पूछा है, if someone is married and has a young child, will they be considered a not ideal candidate? I don't think that's true because where I was studying in Cambridge, there was a man who was pursuing his PhD. I think it was in sociology or one of the STEM sciences. He was in his mid 30s from Egypt, and he had two small children. So initially, he came and joined the university for 6 months. And then, when there was a break, his family came and joined him. So his wife and both his children came and joined him in the university as well. And in fact, in the university, they have specific housing also for families. तो अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो उनके लिए accommodation भी बनाया हुआ है. So I don't think it's a disadvantage. How does that work? Hi, Shazia. I'm Hi. Zara. So this was a great session. I just loved everything. That's my question. So how does that work? You know, if you're married and if you want to apply, and how are you going to bring your family there? I mean, the funding for the family and everything. How does that work? Yeah, so I'm not sure about the funding part of it, but I think for accommodation, my friend did get funding. You know, because he was definitely getting funding for his tuition, and his accommodation, as far as I know, was also covered. But what you can ideally do is, if you figured out which department or which university you're applying to, just write to them directly and ask them. Like these places are actually very approachable, and they're very open, and they want people from various backgrounds with various experiences. And in Cambridge, there were many families. It wasn't just my friend's family. Like, I saw other people as well who came in with their kids. There were women in their late 30s. There were women in their early 40s with children in the age group of 6 to 8. And so some of them, their husbands were also working, and they were working remotely. तो वो कैम्ब्रिज में रहते थे, उन्होंने accommodation कॉलेज में ले ली थी in a family housing, and but the husbands were also working, so maybe they were pitching in economically. I'm not sure. Right. But you can easily write to them and ask. And in places like Cambridge, it depends from college to college. Like, let's say something like Trinity might not be so open to having families, but the college that I was in, St. Edmunds, they were really open to the idea of having families come and stay with them. So you'll have to write to people and find out, but it is a possibility. I saw many families in Cambridge. So that's very interesting. Thank you. Also, could you suggest which would be the best universities for someone who wants to do research in media studies? Someone who has a background of, substantial work experience in the media. They want to do research in the media studies. What kind of universities would be good for that? Which universities, I mean? Yeah, I'm actually not a good person to answer that. Okay. Because I haven't done research on that, but I have a friend who's a practicing documentary filmmaker, and she pursued her PhD from the University of Reading in the UK because it allowed her to make practice as well as do, theoretical research. I've also heard Birmingham is really good for media and cultural studies. Like, if you're looking for just hardcore research, Birmingham University is supposed to be really good because that's where cultural studies came up. And I think media studies sort of grew out of that. Right. Yeah, but I'm not the right person to answer this. You'll have to do more research. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Can I go next? Yeah, walaikum salam. Hi, it was a really, really nice session. I wanted to ask, I've completed my postgraduate in literature. However, I did work on my dissertation and thesis, and while I was happy with what I produced, I've come to realize that perhaps I also wouldn't want to go into academia, and I'd want to do something that allows me to, be on the field, or mainly like not just, be engaged with theoretical aspects. So for somebody who's done, who comes from a literature background, what are the career prospects that I can get into if I'm planning to go to UK? If I wish to change my career, but at the same time, I need to make a stronger application that connects
Yeah, बस sorry, can एक you, so सॉरी हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बस एक गुजारिश है कि हिंदी उर्दू में बोलें तो बेहतर होगा हमारा, क्योंकि सेशन का हमने मीडियम ले रखा है। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, आप प्लीज एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहरा सकती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लिटरेचर से, और मैंने अब मेरा डिसर्टेशन वगैरह उससे मैं खुश थी, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे शायद एकेडमिया में आगे नहीं इतना इंटरेस्ट है, और मुझको ऐसा कुछ करने का ज़्यादा आई एम मोर इंटरेस्टेड कि कुछ ऑन फील्ड, कुछ फील्ड रिलेटेड वर्क हो, एज इन सिर्फ थियोरेटिकल ना हो। तो अगर मुझको अप्लाई करना है बाहर, but I do not want to go for an MPhil or a PhD लिटरेचर में, तो मेरे लिए क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा, बिकॉज SOP और एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग इतनी होनी चाहिए कि इट कनेक्ट्स मेरे लिटरेचर बैकग्राउंड से। तो लाइक मैं आई कैन नॉट राइट कि नहीं मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। Yeah. So, again, I'm not the best person to answer this, but from the people जो इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोगों को मैं जानती हूँ जो बाहर गए हैं काम करने के लिए, एकेडेमिया के लिए नहीं गए हैं, उन्होंने इंडिया में कुछ साल काम किया है पहले। जैसे अगर ह्यूमन राइट्स के एरिया में हो, जिसमें फील्ड रिसर्च, फील्ड वर्क थोड़ा आ जाता है, या ह्यूमैनिटेरियन एड में हो, उन्होंने इंडिया में 2-3 साल काम किया है, ग्राउंड एक्सपीरियंस थोड़ा गेन किया है, और उसके बाद बाहर अप्लाई किया है। लेकिन इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आप डायरेक्टली किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं और किस तरह से पिच कर पाएंगी, क्योंकि एंट्री लेवल में बाहर डायरेक्टली जाने का एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा है, और मेरे दोस्तों में भी मैं लोगों को नहीं जानती हूँ जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद बाहर काम करने चले गए। ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में थोड़ा ग्राउंड एक्सपीरियंस गेन कर लेंगी तो आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा 2-3 साल में। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैट बॉक्स में है, पूछा है कि आप फेलोशिप के बारे में कुछ बता सकती हैं क्या, और ये मास्टर्स से डिफरेंट कैसे है? अच्छा, वो फेलोशिप, तो फेलोशिप जहाँ तक मुझे समझ में आया यूके यूनिवर्सिटी सिस्टम में मास्टर्स से डिफरेंट, हम लोग होपफुली एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा फेलोशिप ज्यादातर लोगों को अपने पीएचडी के बाद मिलती है। जैसे उन्होंने अपना पीएचडी खत्म कर लिया है, या तो फिर उनको पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने जाते हैं वो, या वो कहीं पढ़ा रहे होते हैं, या उनको एक फेलोशिप मिल जाती है जिससे उनको एक बेसिक स्टाइपेंड मिलता है, रहने का जगह मिलता है, और फिर वो अपने चोजन टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और फेलोशिप और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की एप्लीकेशन की प्रोसेस एक ही होती है जहाँ तक मुझे समझ में आता है, और लेकिन ये मास्टर्स से अलग है, ये आपके पीएचडी के बाद ही होता है मेरे जानकारी में। एटलीस्ट कैम्ब्रिज में फेलोशिप लोग पीएचडी खत्म करने के बाद करते थे, और काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया था, वो साथ साथ पढ़ा भी रहे थे और उनको फेलोशिप मिलती थी। तो ये काफी सीनियर लेवल की प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स होती हैं। Assalamualaikum. Actually, that question is mine. Manaz here. Actually, ये graduation के बाद की है CERN में, and I didn't know, like I never thought कि मैं ये program attend करूँगी, but I just came here, and when you were talking about so many different things, I came across very important thing that I'm a visibly Muslim girl, and I'm very sensitive. मैं इंडिया में ही इतनी sensitive हूँ, तो when you said stuffs के बाहर क्या क्या हो सकता है, I'm like literally I'm a bit scared कि ऐसा ना हो जाए कि I come back or something, because I don't want to come back, but I don't want to get mentally tortured or something by any sort of thing. So can you tell me like what should I start doing, or I just thought कि मैं EQ से related कोई कुछ कर लूँ. I don't know. Okay, help me out with that. Yeah, no, please don't be scared, because there are many people going through the same experiences that you are. Even in a place like Cambridge, which is supposed to be very white, there were many people who were visibly Muslims. And वो जो ब्राउन हिजाबी वाली मैंने लिंक भेजी थी, मैं आपको दोबारा यहाँ चैट में भी भेज दूंगी, वो भी आप पढ़िए। कि देखिए, लोग चीजें कहेंगे, स्टीरियोटाइप्स होंगी, लोग जजमेंटल होते हैं, मगर there are many other people going through the same experience.
and so you have to be strong enough to not let it get to you. आपको समझना है कि हाँ ये चीजें होती हैं, और it is, if you're sensitive it might get to you, but आपका aim क्या है, you know, and how do you work towards, कि आप ये बस सोचिए कि मुझे PhD करना है, मुझे PhD बहुत अच्छे से करना है, मुझे इसके बाद नौकरी भी चाहिए, तो आप वो एम अपने जहन में रखिए और आप उसके पीछे लगी रहिए, और आप दोस्त अच्छे बना लीजिए जिनसे आप इन सारी चीजों के बारे में बात कर सकती हैं, क्योंकि फिर उससे थोड़ा दिल भी हल्का हो जाता है कि अच्छा और भी लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है, वो समझते हैं कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। और लेकिन ये उससे डरिए मत आप। अगर ठीक है आप जाती हैं और आपको लगता है कि ये वो चीज नहीं है जो आपको करना है, तो फिर ठीक है आप नहीं करिए, लेकिन आप एक बार कोशिश करिए, आप जाके देखिए कैसा है। अगर अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आप उससे कुछ सीख सकती हैं। तो आप डरिए मत बिल्कुल। बहुत लोग हैं, मुझे ये नहीं पता कि आप क्या कर सकती हैं EQ को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप एक बार जाके देखिए। कई बार हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, मगर फिर हम वो करते हैं तो लगता है कि ठीक है ये भी हम कर सकते हैं। तो आप जाके देखिए, आप डरिए मत बिल्कुल। थैंक यू सो मच। योर सीरियसली आपका सेशन इज लाइक एक बहुत टची रहा मेरे लिए। इट्स लाइक आपके वर्ड्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। आई होप इंशाल्लाह आई डू इट एंड आई विल रिमेंबर यू फॉर व्हेन आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन है एंड ऑल्दो मुझे कुछ और यहाँ पे कहना था, बट क्योंकि ये सवाल जो भी जिसने भी उठाया था अबाउट कि आप विजिबली मुस्लिम हैं और आपको इंडिया में खासकर प्रॉब्लम होती है और बाहर जाके क्या होगा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं खुद एक विजिबली मुस्लिम हूँ, हिजाबी मुसलमान हूँ। एंड तो इंडिया में भी मेरा जो तजुर्बा रहा वो भी काफ़ी अलग था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू स्टडी इन लंदन। मैंने स्वाद से अपना LLM किया एंड यकीन मानिए जिसका भी ये सवाल था कि आप लोगों को कोई भी ऐसी मुश्किल बाहर नहीं आएगी जो आपको इंडिया में जैसे महसूस होती है, क्योंकि खासकर UK जैसे मुल्क में, स्पेशली अगर आप लंदन में पढ़ रहे हैं, लोग बहुत ही आराम से आपके साथ बिहेव करते हैं। दैट बीइंग सेड, हो सकता है आपको ऐसे लोग मिले जो आपके फैकल्टी भी हो सकते हैं, आपके क्लासमेट्स भी हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा नेगेटिवली आपसे शायद बिहेव करें, बट डोंट एवर लेट दैट गेट टू यू। क्योंकि जैसा कि शाज़ा ने भी कहा, माशाल्लाह जिनका बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है सोफा, कि अल्टीमेटली आप वहाँ क्यों गए, आप बाहर क्यों गए, आप पढ़ने के लिए गए, तो आप उसी पर ही ध्यान दें। आप अपने आप को देखें हाउ यू आर डूइंग इन ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, रादर देन ये कि किसी फैकल्टी ने आपके साथ क्या किया। क्योंकि खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारी एक फैकल्टी थी हु वाज अ वाइट अमेरिकन, और उनको बहुत प्रॉब्लम थी ऐसे जो नॉन वाइट ऐसे लोग थे। एंड मेरा ट्रीटमेंट भी काफ़ी अजीब सा रहा, टू द पॉइंट कि मैंने उनसे जैसे अपॉइंटमेंट लिया एंड आई मेट हिम अ डे बिफोर कि सर आई एम गोइंग टू बी कमिंग, मैं आपके पास आई हूँ कल। उन्होंने कहा हाँ कम प्लीज कम, और मैं गई कल, वो अपने ऑफिस में नहीं थे, लाइक ओह आई फॉरगॉट। तो ऐसे भी आपको मिलेंगे फैकल्टीज, तो आप तैयार रहिए, बट अल्टीमेटली आप ये भी याद रखिए कि आप वहाँ जा रही हैं पढ़ने, अपना खुद का मुस्तकबिल बनाने। तो किसी को भी हक नहीं है कि वो आपसे छीन ले या आपके EQ को अफेक्ट करे या कुछ भी ऐसा आपको कह सके, बट डोंट लेट दैट गेट यू, लाइक व्हाट शाज़िया हैज जस्ट सेड, कि आप इत्मीनान से सुकून से जाएं एंड अपनी वहाँ पे पढ़ाई करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाही थी कि व्हाट शाज़िया हैज डन, जो आपने एक पूरा ये प्रेजेंटेशन दिया है, ये अगर कोई मुझे देता इन द 1 ईयर, जो 1 साल मैंने स्पेंड किया अपने खुद के मास्टर्स की तैयारी के लिए, तो शायद मेरी खुद की जिंदगी भी आसान हो जाती। तो शाज़िया माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई एम श्योर कि जितनी भी लड़कियां भी सुन रही हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट ले पाएंगी और अपने खुद के एप्लीकेशंस के लिए कर पाएंगी। और क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट, कि यहाँ पे जो सऊदी स्टूडेंट्स हैं और अप्लाइंग, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके साथ मेरे इनफैक्ट कई डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ऑल्दो मैं खुद लॉ बैकग्राउंड से हूँ, मैंने कुछ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हुआ था रॉयल वेटनरी कॉलेज इन द UK, कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द US, Keio यूनिवर्सिटी इन जापान एंड TUM इन जर्मनी, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मैंने स्टूडेंट्स की असिस्टेंस ऐसे करी है।
एंड एक बात मैं कहना चाहूंगी जो भी अप्लाई कर रहे हैं अब्रॉड, दैट वन ऑफ द थिंग्स, एक जो चीज है जो सारी कंट्रीज सारी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल हैं, कि आप अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे किसी ने पहले भी अभी सवाल उठाया था दैट आपकी शादी हो चुकी है या आपके बच्चे हैं, विल दैट मेक यू एन आइडियल कैंडिडेट और नॉट। वो मायने ही नहीं रखता। अगर आप अपने आप को अपने एसओपी में, अपने एसेज में, अपने स्कॉलरशिप के जो भी एसेज होते हैं, अगर उसमें आप अपनी ऐसी तस्वीर उतार सकते हैं जो एडमिशंस कमेटी चाहती है, तो फिर आपको कुछ नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट कि अगर एडमिशंस फुल हो गए हैं या जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो होती हैं। तो ये एक आप लोग सब लोग अपने माइंड में रखें दैट वन अदर प्रॉब्लम जो मैंने एक देखी है खासकर होती है, विच आई थिंक इज एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो सऊदी स्टूडेंट्स हो चाहे इंडियन स्टूडेंट्स हो जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अगेन उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अपने एसओपी में। वो बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे, बहुत उन्होंने अमेजिंग काम किया होगा, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, बट क्योंकि उनके पास लैंग्वेज की स्किल नहीं है तो वो पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से जो मैं खुद भी काम करती हूँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव, एक बहुत ही नीश मैंने अपना ये किया हुआ है कि द स्टूडेंट की जो जिंदगी है वो उसकी लैंग्वेज की वजह से पीछे नहीं रह जानी चाहिए। कि जस्ट बिकॉज आपको अंग्रेजी के अल्फाज उस तरह से नहीं आते जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी यूरोपियन को या किसी अमेरिकन स्टूडेंट को आते हैं, तो दैट शुड नॉट, आपको वो एक रुकावट नहीं डालनी चाहिए खासकर आपके पढ़ाई के सिलसिले में। और ये अगेन इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आती है, बिकॉज मैंने भी देखा जो अपने कॉलेज के जूनियर्स थे वो सब कि दी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसा मैच करना है व्हाटएवर, तो उनके फिर एप्लीकेशन को और रिफाइन करना, ये सब करना, एंड ये बहुत ही जरूरी है जो माशाल्लाह शादिया ने भी कवर किया है, जो अपने नेटवर्क की बात करी है। इट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट शादिया ने उठाया है, एंड आई एम अमेज्ड कि उन्हें इतनी सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इतने कम समय में कवर करनी है। तो अगेन माशाल्लाह शादिया, बहुत ही जबरदस्त जॉब, तो कूडोस टू यू फॉर दिस। एंड तो मेरी भी एक ये मशवरा रहेगा बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट आप लोग कोशिश करें जो भी अप्लाई कर रहा है, अगर आप किसी को जानते हैं जो अप्लाई कर रहा है, कि उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है खासकर जो सबसे बेसिक है, दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कि उसको पीछे नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज आपकी लैंग्वेज कम है। मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देती हूँ चैट बॉक्स में, अगर आपको लगता है कि आपको और मजीद ऐसे सवाल हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में, खासकर अब पोस्ट पैंडेमिक कॉलेजेस की जरूरतें बदल गई हैं, यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, उनके ऐसे क्वेश्चंस तक के बदल गए हैं। तो उन सब चीजों को कैसे हैंडल करना, अपनी फंडिंग का भी, जैसे स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप ऐसे जो होते हैं, वो सब चीजें मैं अपना मेल आईडियां डालूंगी, एंड अगर किसी को ऐसे सवाल है तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन शादिया, अगेन कूडोस टू यू, जॉब वेल डन, थैंक यू सो मच। शुक्रिया ऐमन। ये जो बात आई उस पे से एक सवाल ये भी था कि जो एग्जाम्स होते हैं लैंग्वेज वाले, IELTS या GRE वगैरह, वो उसका भी फिर ढूंढना पड़ता होगा, है ना शाजिया? ये पॉइंट। हाँ या तो हर यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट अलग होते होंगे वो। हाँ, हर यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। तो उसको भी आपको टाइमिंग बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में भी, क्योंकि अगर आपका IELTS का रिजल्ट सही टाइम में नहीं आता है, हो सकता है फंडिंग में प्रॉब्लम हो जाए या एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को आपको आपका टाइम ध्यान में रखना होगा, और फाइनेंसेस, क्योंकि IELTS GRE इन सब चीज़ों के लिए भी एक एग्जामिनेशन फी होता है। तो और उन चीज़ों के लिए शायद स्कॉलरशिप्स या फंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। तो आपको रिसोर्सेज, पैसों के बारे में सोचना होगा और टाइम के बारे में। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा साइकिल है, क्योंकि मुझे देना नहीं पड़ा था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो मांगते नहीं है, अगर आपकी एजुकेशन अंग्रेजी में रही है तो वो कहते हैं कि ठीक है आप मत दीजिए। लेकिन उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन से फ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजी में पूछी, बताई, देखने के लिए कि मैं समझ पा रही हूँ या नहीं। तो उन्होंने फ़ोन पे मेरी एक छोटी सी टेस्ट ली थी। लेकिन वो चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा और उस हिसाब से आपकी प्लानिंग करनी होगी। यहाँ एक फंडिंग को लेकर के सवाल आया था, बेस्ट टाइम टू कीप अप्लाइंग कीपिंग फंडिंग इन माइंड। मुझे लगता है कि सितंबर बेस्ट टाइम है, क्योंकि जो
जैसे कैम्ब्रिज में एक है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप, जो सबसे बढ़िया स्कॉलरशिप है, सबसे ज्यादा अमाउंट है मंथली स्टाइपेंड का, सबसे ज्यादा एक्सेस टू रिसोर्सेज आपको मिलती हैं उसमें, और उसकी फंडिंग उसकी एप्लीकेशन सितंबर में कभी शुरू होती है। तो जो सबसे ज्यादा अच्छे स्कॉलरशिप्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो आपको सितंबर में अपना रिसर्च सितंबर के पहले आप अपना रिसर्च शुरू कर दीजिए, लेकिन एप्लीकेशन की प्रोसेस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक खत्म करना होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल फंडिंग्स जहाँ तक यूके में है वो दिसंबर तक ड्राई अप हो जाती हैं। तो आपको अपना प्रोसेस मुझे लगता है सितंबर तक शुरू कर देना चाहिए। इनलैक्स की जो है मान लीजिए आपको 2022 में जाना है, इनलैक्स की जुलाई 2020 जुलाई के उस साल तक 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उनकी इंटरव्यूज तब होती हैं। कॉमनवेल्थ का थोड़ा ज्यादा जल्दी होता है, फरवरी मार्च वाला डेडलाइन होता है, लेकिन ये बदलते रहते हैं। और अब पैंडेमिक ईयर में क्या है, कितने रिसोर्सेज अभी बाकी हैं, कितने ड्राई अप हो गए हैं, ये भी आपको ऑनलाइन चेक करना होगा। लेकिन आपके जैसे मैंने कहा 3 मेन सोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट, वो अलग अलग होते हैं। डिपार्टमेंटल फंडिंग अलग होती है, यूनिवर्सिटी की अलग होती है, आपको दोनों जगह अलग अलग लिख के पूछना होगा। फिर प्राइवेट पार्टीज होते हैं जैसे इनलैक है या गेट्स कैम्ब्रिज है, और फिर गवर्नमेंटल स्कॉलरशिप। तो तीनों रिसोर्स को आप हर महीने, हर हफ्ते गूगल करके ढूंढिए क्या निकल रहा है, क्या डेडलाइन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी थैंक यू शाजिया। 2 सवाल चैट बॉक्स में है हमारे पास, मैं पढ़ देती हूँ। एक पूछा है कि हाउ अर्ली कैन वन गेट इंटरेस्टेड इन एकेडेमिया, मतलब एकेडेमिया में कितना जल्द इंटरेस्ट आ सकता है। सॉरी ट्रांसलेशन नहीं ठीक हो रहा। और एक आस्किंग फ्रॉम एन इंडियन अंडरग्रेजुएट STEM student's point of view, a little different from your field of expertise, but I would love to know your point of view. एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये सवाल पूछ रहे हैं कि एकेडेमिया में इंटरेस्ट है या नहीं, कैसे कब पता चल सकता है, और एक अंडरग्रेड स्टूडेंट के लिए क्या? हाँ, एकेडेमिया में इंटरेस्ट आपको कभी भी पता चल सकता है। यू नो कुछ लोग थे जो 45 इयर्स ओल्ड थे, उन्होंने अपनी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके लाइफ में आगे चल के, तो उन्होंने वो सब किया, और फिर अब लगा कि मुझे एकेडमिक रिसर्च करना है तो वो आ गए। कुछ लोग थे जो फील्ड में 10 साल के लिए काम कर रहे थे, अर्ली 30s में थे, और फील्ड में काम करते करते उन्हें लगा अरे ये तो रिसर्च के लिए काफी अच्छा टॉपिक है और परस्यू करना है, वो आ गए। कुछ लोग 24 इयर्स ओल्ड के भी थे। तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। हाँ, आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आपकी PhD मान लीजिए 5 साल की है यूके में, या 7 इयर्स की है US में, ठीक है। आपको आगे आप किस तरह से इसके बारे में सोच रहे हैं। आपको स्टूडेंट स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, तो कुछ जगह काफी अच्छी होती है, कुछ जगह कम होती है, मतलब आप स्टूडेंट के जैसे रह रहे हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप करेंगे तो कुछ जगह भी आपको बहुत अच्छा एक स्कॉलरशिप मिल सकता है, या हो सकता है आपको एकदम बेसिक स्कॉलरशिप मिले, जो भी एक स्टूडेंट के जैसा ही स्कॉलरशिप होता है। तो हमेशा ये बात है कि इंडस्ट्री में कंपेयर टू एकेडेमिया ज्यादा पैसा है। और अगर आप मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि अब PhD खत्म करने के बाद अगर आप पोस्ट डॉक करेंगे, आपको पोस्ट डॉक 1 साल के लिए मिल सकता है या 2 साल के लिए मिल सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप वहाँ 1 साल बिता रहे हैं या 2 साल बिता रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपको कहीं एड हॉक पोजीशन मिले, मतलब परमानेंट पोजीशन नहीं है, ठीक है। आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार जाके क्लासेस पढ़ानी है, और आपको उसके लिए भी एक बहुत बेसिक स्टाइपेंड मिल रहा है। हो सकता है आपको हेल्थ केयर या अदर बेनिफिट्स नहीं मिले, क्योंकि आप परमानेंट स्टाफ नहीं है। तो अगर आपकी फैमिली भी है, आपको उस बारे में भी सोचना होगा। बहुत लोग करते हैं विथ फैमिलीज। देयर आर मेनी पीपल गोइंग डाउन द एकेडमिक पाथ इवन इन देयर 30s. They are managing it very easily. Sometimes they have a partner who's working in the industry, so they have another source of income. Sometimes they do not have another source of income, but they're still managing it. So you have to decide what kind of lifestyle you want, what your long-term goal is, how passionate about you are academia, and then take a call. So there's no age. I think people from all age groups come who are interested in academia, are willing to make the sacrifices that are required for them, and are enthusiastic about what they're doing.
अबाउट स्टेम आई ऑनेस्टली डू नॉट नो, स्टेम रिसर्च के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो या आई मैं इसमें ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। इंडिया से स्टेम रिसर्च में भी काफ़ी लोग थे कैम्ब्रिज में जिनसे मेरी मुलाकात हुई। कुछ लोग एमफिल के लिए आए थे, फिर वो पीएचडी में कन्वर्ट हो गया। और कुछ लोग स्टेम आई मीन इंजीनियरिंग में भी कुछ लोग थे जो वापस इंडिया आए और फिर उन्हें बाहर नौकरी भी मिल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेम रिसर्च के लोगों को इंडस्ट्री में भी बाहर नौकरी मिलना थोड़ा आसान हो गया था डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि स्टेम में बहुत ज्यादा लोग थे कंपेयर टू ह्यूमैनिटीज, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है जी। थैंक यू। अगला सवाल जो है वो पूछा है कि कोई टिप्स हैं पीएचडी का प्रपोजल बनाने के लिए, और कितने आइडियाज होने चाहिए एक इंसान के पास इस पीएचडी प्रपोजल के लिए, एंड बेहतरीन टाइम कौन सा है अप्लाई करने का? टाइम तो जैसे मैंने कहा कि सितंबर में आपको लोगों से बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ पीएचडी प्रपोजल, मैंने खुद दरअसल पीएचडी प्रपोजल नहीं तैयार किया है, तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ तो लेकिन अगर यहाँ पे कोई है जिनकी एक्सपीरियंस रही है इस एरिया में तो वो आपको बता सकते हैं। शारिद था लेकिन वो शायद चला गया है जो बाहर पीएचडी कर रहा है, मगर एनीवेज तो पीएचडी की मुझे एक्सपीरियंस नहीं है पीएचडी प्रपोजल बनाने की। आइडियाज कितने होने चाहिए, ज्यादातर लोग जहाँ मुझे पता है वो एक टॉपिक जो उनका होता है जिसमें ऑलरेडी उनकी थोड़ी एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड वर्क कर चुके हैं, उस आइडिया को वो आगे लेके जाते हैं, है ना, कि ऑलरेडी जैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर चुके हैं वो इंडिया में, और फिर उन्हें लगता है कि अच्छा फील्ड में मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, अब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकती हूँ, तो वो आइडिया को वो आगे लेके जाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता जरूरी है कि 2-3 आइडियाज आपके पास हों, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका रिसर्चर सुपरवाइजर के ऊपर, लेकिन या पीएचडी प्रपोजल मैंने भी तैयार नहीं की है तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकती आपको जी। लोगों ने आपका काफी शुक्रिया अदा किया है हमारे चैट बॉक्स में। एक सवाल और आया है कि कैन वी अप्लाई विदाउट IELTS? ये डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में IELTS जरूरी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होती हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, या तो फिर आप अपने डिपार्टमेंट में किसी को लिख के, जो एडमिन की एक कांटेक्ट दी होती है उसमें आप डायरेक्टली लिख के पूछ भी सकते हैं, वो बहुत अप्रोचेबल होते हैं। तो आपको खुद पता करना होगा, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की अलग अलग होती हैं IELTS रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, किसी का और कोई सवाल हो तो पूछिए आप लोग। मेरा एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है और उसके बाद मैंने एमफिल नहीं किया, और हिस्ट्री पढ़ते दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करना चाहूँगी, प्योर हिस्ट्री में, और एमफिल नहीं किया। फिर मैं काम में लग गई एज अ रिसर्च असिस्टेंट। आई एम वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ मेरा रिसर्च का थोड़ा एक है एक्सपीरियंस, लेकिन वो एकेडमिक रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं पीएचडी जो करूँ उसमें मैं थोड़ा डिटोर लूँ। मैं हिस्ट्री में नहीं करना चाहती, मैं रिलीजियस फिलॉसफी में जाना चाहती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि ये कितनी आइडियल या नॉन आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कुछ पब्लिश्ड काम होना चाहिए जिस एरिया में आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन एज सच रिलीजियस स्टडीज़ में मेरा कोई पब्लिश्ड काम नहीं है और ज़्यादा समझ भी नहीं है। तो मैं पढ़ तो रही हूँ उस फील्ड में थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जितना हिस्ट्री में। तो कितना पॉसिबल हो सकता है मेरा सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए?
नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आपका पब्लिश्ड काम हो, उससे आपके एप्लीकेशन को वो थोड़ा और मजबूत बना देती है अगर आपने कुछ कहीं पे लिखा हो, क्योंकि उससे दिखता है कि आपको रिसर्च करना या लिखना आता है। वो एंड जरूरी नहीं है कि जो आपका पब्लिश्ड काम है वो एकेडमिक ही हो, वो बस नॉन फिक्शन या एक आर्टिकल की तरह भी हो सकता है। आपके चांसेस क्या हैं ये बताना मुझे थोड़ा मुश्किल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप उनके रिलीजियस स्टडीज डिपार्टमेंट में लिख के पूछ सकती हैं। मेरी एक दोस्त है जिसने मीडिया एंड कल्चर स्टडीज किया था मास्टर्स जिससे, और वो अभी रिलीजियस स्टडीज कर रही है पीएचडी यूएस से। तो उसको कोई कन्वर्जन कोर्स या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, और वो ज्यादा पब्लिश भी नहीं करती थी। उसके 1-2 आर्टिकल्स पब्लिश हुए होंगे और बहुत पहले, तो उसके लिए वो ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो करते हैं, एक बैकग्राउंड से फिर वो दूसरे बैकग्राउंड में जाते हैं। तो मुझे लगता है वो हिस्ट्री से रिलीजियस स्टडीज में मूवमेंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या एग्जैक्ट चांसेस हैं, इसके लिए आपको एक ब्रीफ सीवी, एक अपना ब्रीफ बैकग्राउंड, आपकी इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिख के कोई पोटेंशियल सुपरवाइजर को लिखना होगा बाहर कि मेरी ये बैकग्राउंड है, मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं आपको लिख रही हूँ क्योंकि आपका भी ये एरिया है और मुझे लगता है इस चीज़ के बारे में मैं आपसे सीख सकती हूँ। ऐसा एक अच्छा सा ईमेल आपको तैयार करके भेजना होगा, और फिर वो आपको बताएंगी कि हाँ मुझे लगता है कि आप मेरे साथ काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आपको कहीं और अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को आपको लिखना होगा। आप 5-6 लोगों को लिखेंगी, हो सकता है कुछ रिप्लाई ना करें, कुछ मना कर दें। तो लेकिन कोई एक मना करता है, उसका ये मतलब नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, बाकी और भी दरवाजे हैं। तो ये आपको खुद थोड़ा तैयारी से आपको लोगों को ईमेल करना है, आपको उनसे पूछना है कि आपकी क्या चांसेस हैं। कि कोई इग्नू या ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अप्लाई करना चाहे तो क्या उसके एप्लीकेशन को कम समझा जाएगा, अनआइडियल समझा जाएगा? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके बारे में आपको अपने ही डिपार्टमेंट से कोई बेस्ट बता पाएगा, क्योंकि वो जानते होंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी से और लोगों ने अप्लाई किया है या नहीं, उनका क्या तजुर्बा रहा है। तो आप ऐसे किसी से पूछिए जिनका ओपन यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस रहा है, जो बाहर गए हैं पढ़ने के लिए या जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स टीचर्स जानते होंगे क्या चांसेस हैं। जी। एक सवाल और पूछना था मुझे शाजिया। अभी जो सवाल पूछा कि अगर बैकग्राउंड चेंज करना हो हमको, अपना रिसर्च किसी दूसरे एरिया में करनी हो, तो क्या उससे हमारे जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं? मतलब वो अगर हमको, जैसे मैंने बताया मैं मीडिया स्टडीज, मेरा मीडिया बैकग्राउंड है ना, मेरा तकरीबन 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मीडिया में, पब्लिश्ड आर्टिकल्स वगैरह सब हैं। बट अगर मैं लिटरेचर में फॉर एग्जांपल पीएचडी करना चाहूँ, तो आगे चल के मेरा एकेडेमिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे? मुझे ऐसा तो नहीं है कि ये कहा जाए कि आपका बैकग्राउंड इसमें है तो आप इसमें रिसर्च कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एकेडेमिया में पीएचडी से ज्यादा लेना देना नहीं है। बहुत कम लोग हैं एकेडेमिया में जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जैसे सिद्धार्थ वदराजन है द वायर में, और राजदीप सरदेसाई हो सकता है उन्होंने पीएचडी की है, आई एम नॉट श्योर। बट बहुत कम लोग हैं जिन्होंने एकेडमिक रिसर्च किया है या पीएचडी नहीं, बैकग्राउंड। मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं, जैसे मैं अभी तक तो मैं एक्चुअल में फील्ड में थी मीडिया में, राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। अगर अब मैं नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी में एज एन एड हॉक फैकल्टी मेंबर, तो अब अगर जब मुझे फुल टाइम एकेडेमिया में अगर एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह करना है, तो अगर ऑब्वियसली आई वाज थिंकिंग कि मैं मीडिया स्टडीज में करूँ पीएचडी, पर मगर अभी ये सवाल जो किसी ने पूछा उन्होंने, तो अगर मैं, जैसे मेरा लिटरेरी जर्नलिज्म में काफी काम है, तो अगर मैं लिटरेचर में पीएचडी करूं तो आगे चलकर फिर ये प्रॉब्लम तो मेरे लिए नहीं आएगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर इफ यू वांट टू बी इन मीडिया स्टडीज तो आपका पीएचडी लिटरेचर में क्यों है? या अगर आप लिटरेचर में, अगर आप लिटरेचर में प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल आप सोचें या मैं सोचूं कि भाई ठीक है मैंने पीएचडी लिटरेचर में कर लिया तो अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लिटरेचर में बन जाऊं, तो फिर मुझसे ये कहा जाएगा कि नहीं, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो तो सारा बैकग्राउंड मीडिया में था, तो आप लिटरेचर कैसे पढ़ा सकते हैं? सो दैट काइंड ऑफ अ नो मैन लैंड, ऐसा तो नहीं हो जाएगा?
इसके लिए आपको यू नो अगेन मीडिया स्टडीज के लोगों से बात करनी होगी जो ऑलरेडी फील्ड Okay. में हैं, जो एकेडेमिया में है, जो पढ़ा रहे हैं मीडिया स्टडीज में। क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म कोर्स किया था बीए का, वो था मीडिया स्टडीज, उसमें मीडिया स्टडीज भी थी, कल्चरल स्टडीज भी थी, और लेकिन जो लोग हमें मीडिया स्टडीज पढ़ा रहे थे वो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से थे, लेकिन कुछ अच्छा। ओवरलैप्स थी, यू नो, जैसे हैबरमास हो गया, वो हेजेमनी पढ़ा रहे हैं, या यू नो पब्लिक कल्चर पढ़ा रहे हैं, तो थोड़े सोशियोलॉजिकल ओवरलैप्स उसमें थे। और ज्यादातर होता ये है कि आपकी पीएचडी आपका एकेडमिक कोर्स डिसाइड करती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन मान लीजिए आपकी पीएचडी है कि यू नो इस्लामिक सोसाइटीज इन टर्की, आई मीन जस्ट समथिंग इस्लाम इन टर्की, तो आपको जो पोस्ट डॉक मिलेगा वो भी उस बेसिस पे मिलेगा, और जो जिसने अगर इस्लाम इन टर्की में पीएचडी की है वो आगे जाके यू नो मुस्लिम स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज ऐसे डिपार्टमेंट या स्पेशलाइजेशन में ही पढ़ाते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। तो उससे आपकी जो पीएचडी की टॉपिक है वो डिटरमाइन करती है आपकी एकेडेमिया में आगे क्या करियर या फ्यूचर होने वाला है, तो इससे फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट या इंसाइडर से बात करके देखिए मीडिया स्टडीज में ऐसा ओवरलैप होता है या नहीं होता है। जी राइट, थैंक यू। ओके, हाँ, यहाँ पे किसी ने, मदीहा ने कहा है कि यू कैन गेट इनटू लिटरेचर डिपार्टमेंट्स विद अ कल्चरल स्टडीज पीएचडी। अगर मैं बस उसको एलैबोरेट करती तो मेरा एक सेपरेट पेपर था, बिल्कुल मैंने लिटरेचर कोर लिटरेचर से अपना पोस्ट ग्रेड किया है, तो कल्चरल स्टडीज का बिल्कुल सेपरेट पेपर होता है जहाँ पे क्रिटिकल मीडिया स्टडीज आ जाता है। सो अगर आप इंडिया में कंपैरेटिव लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज और ये सब लिटरेचर की एम्बिट में आता है, तो इन इंडिया स्पेशली अगर आपने कर रहे हो, बाहर का मैं नहीं कह सकती, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आपने कल्चरल स्टडीज से पीएचडी की है तो यू कैन अप्लाई फॉर लिटरेचर डिपार्टमेंट्स। See, thank you. Yeah. एक मैं I don't want to interrupt, but बस मुझे लगा कि I should add to Zahra's question कि like in my field what I've seen is कि what can help you, Zahra, is you look through the people who are dignitaries in your field कि उन लोगों ने किन किन सब्जेक्ट्स में PhDs करी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट वही स्पेसिफिक फील्ड में ही PhD हो। Like for example, I'm a dentist, but people who are still teaching dentistry have done their PhDs in engineering as well, in dental materials, in biomedical engineering, in microbiology, and these are all subjects which are taught in the dental school. So I think journalism भी बहुत एक wide scope रखता है, तो you should look into what all journalists are doing PhD into, people of your field are doing into. Right. Thank you. और कोई अगर किसी का सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। चैट में एक सवाल है। PhD in Islamic Studies, नहीं, इस एरिया में मैंने रिसर्च इतनी नहीं की है। आपको देखना होगा, बहुत सारे रिलीजियस स्टडीज के डिपार्टमेंट होते हैं ये, या एंथ्रोपोलॉजी में एक पूरा स्पेशलाइजेशन है, यू नो, दे स्टडी मुस्लिम सोसाइटीज and they are in dire need of alternative perspectives, by the way, because largely it's been, you know, people from the West going to the Middle East and studying, or South Asia coming to South Asia and studying Islamic societies and Muslim cultures. अब कुछ लोग हैं जो South Asia से भी जा रहे हैं या Middle East से भी उस डिबेट में contribute कर रहे हैं, but it's still one-sided. तो anthropology में एक पूरा specialization है जो आप कर सकती हैं, या कुछ जगह इस्लामिक स्टडीज के डिपार्टमेंट भी होते हैं। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट। So I don't have any specific suggestion. Again, you have to do your own research. You have to look at different departments, क्या आपको ऑफर कर रही हैं, एंथ्रोपोलॉजी में क्या मिल रहा है। साउथ एशियन स्टडीज में भी आप इस्लामिक स्टडीज कर सकते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में साउथ एशिया स्टडीज की डिपार्टमेंट होती है। So you know, find the right supervisor,
find a place where the supervisor is also interested in what you're doing, then maybe funding avenues will also open up for you more easily. I can suggest one name at least, क्योंकि वहाँ के scholar की मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी है. So the university is George Washington University. So he's a scholar of Islamic studies और उनकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी. So at least that's one university you could look at. Yeah, thank you, Zara. Yeah. Independent projects with foreign faculty based on your master's degree. ऐसा मैंने तो कुछ नहीं किया है, कुछ लोग करते हैं जो you know, but I don't know independent projects में people stay back and you know, अगर उनका कोई research department में independent research department in the not independent research department but in the universities they stay back and they work on projects that are ongoing in the university itself within the departments. Independent projects के लिए funding की बहुत ज़्यादा problem हो जाती है. So unless your supervisor is very well funded and then they can fund you to work independently with them, great. But ये बहुत कम होता है, मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं है. मुझे लगता है मुश्किल होगा funding के वजह से. Could you please share some that you did that made your CV stronger to apply in Cambridge? I think what made my application stronger was that I had a background in journalism. So I already had written work to show them, you know, in the area of caste development, fabricated Maoist cases, communalism. So it was a wide area of work which works in anthropology because anthropology ka scope itna bada hai. And second, in anthropology, their fieldwork method is participant observation. So you go down, you know, to आप जो आपके जिनके साथ आप रिसर्च कर रहे हैं आप उनके साथ जाके रहते हैं. क्योंकि मेरा फील्डवर्क एक्सपीरियंस इतना था और ज़्यादातर इमर्सिव फील्डवर्क था, that worked to my advantage. And that's why I keep saying, if you have published work, it will prove to them कि आपने ये काम already किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं. So I think that's what made my application easier. I was very late for a lot of scholarships for that the scholarship process. That is why I'm emphasizing कि scholarship के बारे में आप जल्दी सोचना शुरू कर दीजिए. I was late because I kept thinking कि apply मेरा admission होगा नहीं कि अब मुझे you know so I kept thinking कि there's no point in me applying, मेरी admission नहीं होगी. और फिर towards the end of the year I was like नहीं कोशिश कर लेते हैं. तो फिर पहले मेरी गोल्डस्मिथ में एडमिशन हो गई तो फिर हौसला थोड़ा बढ़ा और मुझे लगा कि ठीक है मैं दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकती हूँ. फिर मैंने कैम्ब्रिज में अप्लाई की, लेकिन तब तक जब तक मेरा हौसला बढ़ा और मैंने अप्लाई की स्कॉलरशिप्स की सारी डेडलाइंस ज़्यादातर डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी थी. तो थोड़ा इधर उधर से मैंने मैनेज कर लिया है, लेकिन स्कॉलरशिप्स मिलना मुश्किल है अगर आप यू नो डेडलाइन को ध्यान में नहीं रखते हैं. तो वो गलती मत कीजिए जो मैंने किया था. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने सुपरवाइजर नहीं भी फिक्स किया है हमने किसी ने या सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक यूनिवर्सिटी में, तो भी हम स्कॉलरशिप के लिए सर्च जो है शुरू कर सकते हैं और वो प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं. हाँ आप सर्च शुरू कर दीजिए क्योंकि यू नो देन इट्स इजियर. मतलब आपको पता है डेडलाइंस क्या हैं, कब तक आपको फिर अपने यू नो सुपरवाइजर से कॉन्फर्मेशन चाहिए, कब तक रेफरेंसेस आपको तैयार करने हैं. सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू स्टार्ट looking for scholarships much ahead. कुछ scholarships ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि you have to have confirmation of admission to apply for this. लेकिन अगर वो भी है फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि डेडलाइंस क्या हैं, आपका टाइमलाइन क्या होना चाहिए. तो मुझे लगता है आपको scholarships बहुत जल्दी ढूंढना शुरू कर देना चाहिए. अच्छा, 2 सवाल और आए हैं. एक पूछा है आपका ईमेल एड्रेस मांगा है अगर इफ दैट्स ओके विद यू, और दूसरा सवाल है कि कोई स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप या सर्टिफिकेट कोर्स किया था क्या आपने SPSS वगैरह का? क्वालिटेटिव मेथड मैंने यू नो रिसर्च के दौरान MPhil के दौरान सीखा है. क्वांटिटेटिव नहीं सीखा है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई वांट टू लर्न इट बिकॉज आई थिंक उससे आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं. आजकल डेटा मार्केट में, जॉब मार्केट में डेटा बहुत डिमांड में है. तो अगर आपको क्वांटिटेटिव भी काम करना आता है, इट्स रियली गुड फॉर यू ऑन द CV.
It will make you stand out amongst people. So I haven't done it, but I know there are a lot of online courses that are available. I've been trying to look them up. And it's a very good idea to back it up. बहुत सारे PhD courses में वो quantitative खुद सिखा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके रिसर्च के पहले आपको जानकारी हो, वो आपके कोर्स वर्क का हिस्सा होता है. तो अगर आप कहीं PhD करने जा रहे हैं वो आपको सिखा देंगे. I don't think that makes a huge difference. Yeah, but it's a good skill set to have. Yeah. Okay. Yeah, okay. Also my email ID, you know, I can share it, but I will have to set a deadline. If you want to send me questions, say by the 25th of this month, you can send them to me and I'll reply to them as and when. But I'm very sorry, that's going to be my deadline, because you know, whatever I know, I've already shared. ठीक है? तो जो भी मुझे पता है मैंने share कर दिया है. So I'll have to set that deadline, because just so that, you know, whatever I'm doing next, then I can go to it fully. So I have my email ID here, but up 25th of this month, I'm available until 25th of this month for any questions, because mostly मुझे जो भी share करना था, okay, जी. ठीक है, तो हमें अगर सवालात पूछने हैं आपसे तो 25 सितंबर के पहले या उस दिन तक पूछ सकते हैं. हाँ, because you know, then it will work for, yeah, both of us. It'll work out well that way. ईमेल आपने शायद everyone को नहीं भेजा. Oh, okay. Oh yeah, it's gone. Yeah, I only also to cannot see. Minaz. हाँ. Okay. Everyone in meeting. Yeah. Okay. Yeah. Once again, thank you so much. Jazakallah khair for being here. आप आई हमारे साथ जुड़ी और बहुत डिटेल में आपने बात की, और आपका प्रेजेंटेशन ही काफ़ी डिटेल था. उसके बावजूद जितने डाउट्स और सवालात थे उन सबका जवाब